Today we are starting with 6.2 biomolecules in the cell. In that, a new topic, that is enzyme. Now that enzymes, all you know that enzymes, because of enzyme, different type of metabolic reaction and a chemical reaction in our body and outside the organism is proceed with a faster rate, जो कि fast rate से हो सकता है. So this is nothing but the enzyme. So now we are starting with that enzyme. What is the meaning of enzyme? What is the characteristic of enzyme? What is the presence of enzyme? What is the different type of enzyme? So German chemist, that is Edward Brunner, discovered enzyme by accident. Brunner discovered that living cells were not necessary, but that yeast extract could bring about a fermentation. So इनको कहाँ पर मिला? So he get that enzyme first in the yeast. yeast के बॉडी के अंदर जो भी फर्मेंटेशन रिएक्शन हो रहा है, इसके अंदर इन्होंने ये एंजाइम्स वर्ड का डिस्कवरी किया. Then he coined the term enzyme, that is a Greek word. Enzymes means inside and zyma means a yeast. So inside a yeast. So whatever this scientist, he get that enzymes which is present in a yeast. इनको ये enzymes कहाँ पर मिला है? yeast organism के body के अंदर मिला है. So according to a Greek word, इन्होंने इसका naming दे दिया, that is enzyme, that is inside a yeast body. Now these enzymes, the term is now commonly used for enzyme. This is biocatalyst. Bio means a living. Catalyst means you know that a different type of chemical reaction. If I'm taking an example like if we are drinking a milk, so milk के अंदर होता है disaccharide lactose, जिसके वजह से हमको वो milk sweet लगता है. So lactose, in presence of enzyme lactase, it is converted into glucose and galactose. So most of the enzymes in the world are utilized in the catalytic reaction. यानी कि वो bigger molecule को किस में convert करेगा? Smaller molecule में convert करेगा. So this is also called as a biocatalyst. Bio means living. So ये ज्यादातर जो enzymes थे, ये हमको कहाँ पर मिलते हैं? Living organism के body में ही form होता है. So this is called as a biocatalyst. Now, thousands of different chemical reactions take place automatically at a given rate in a tiny living cell. That is a yeast, bacteria and all the things. किसी के भी organism के body के अंदर बहुत सारे thousands of chemical reaction हो रहा है, and this chemical reaction are automatically at a given time. Small time में और बहुत ही कम time में ये क्या हो रहा है? Reaction पूरा का पूरा हो रहा है, and this is with the help of a enzyme. और ये कैसे हो रहा है? So this is possible with the help of enzyme. Just a minute. Now, the reaction take place at a body temperature. That is body temperature. If I am taking a human body, so हमारे body का internal body temperature है 37 degrees Celsius. So different type of chemical reaction in our body, it is take place in 30. If that organism is living in the water, so water का temperature थोड़ा सा low होता है. So उनके body के अंदर जो organism है, वो उस temperature पे ज़्यादा से ज़्यादा activity show करता है. If these enzymes were not present in the cell, either the reaction will not occur, or if they occur, they would occur at a very slow. Okay? अगर किसी organism के अंदर, okay, अगर किसी organism के अंदर अगर कोई भी chemical reaction हो रहा है, and if a chemical reaction is not present, or if it is take place but enzymes is absent, या तो अगर enzymes absent रहा तो वो chemical reaction होगा ही नहीं. if अगर हो भी रहा है तो वो chemical reaction slow rate में means जैसे कि अगर मैंने मिल्क पिया है तो उसको 20 मिनट लग रहा है, 10 मिनट लग रहा है. सो इन एब्सेंस ऑफ दैट एंजाइम लैक्टेज, वो रिएक्शन 1 day 2 day भी टाइमिंग ले सकता है, यानी कि स्लो रेट में होगा इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम. नाउ द नेक्स्ट, each enzyme catalyze a small number of reactions. Specifically,
perhaps only one. Normally, one enzyme is only for a one chemical reaction or only one substrate, यानी कि वो एक ही molecule पे react करेगा, not a different type of chemical. Now, the substance upon which an enzyme act is called it as a substrate. Like if I'm taking an example, जैसे कि अगर मैंने lactase enzyme, तो lactase enzyme किसके साथ रिएक्शन फॉर्म करेगा? तो दैट इज लैक्टोज, डाइसैकेराइड लैक्टोज के साथ ही रिएक्शन करेगा. दूसरा अगर हमने स्टार्च दिया तो रिएक्शन होगा क्या? नहीं होगा. सो द सब्सटेंस अपन विच एंजाइम एक्ट, तो जिस सब्सटेंस के ये एंजाइम एक्टिविटी शो करता है, those substances call it as a substrate. You can see in this picture, this green portion is enzyme and this one is a substrate. So ये enzymes इसी substrate के साथ में reaction करेगा और product का formation. Now, the enzymes which act within the cell and they are synthesized are known as endoenzymes, and enzymes produced in the chloroplast and mitochondria. Now, what's the meaning of that? So, according to their arrangement and where they are giving a reaction, enzymes is of two type, दो टाइप के एंजाइम. एक एंजाइम है एंडोएंजाइम्स, दूसरा एंजाइम है एक्सोएंजाइम. एंडो मींस इनसाइड, एक्सो मींस एक्सिट. सो इफ इन आवर बॉडी, अगर हमारे बॉडी के अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा है, सपोज इफ आई एम टेकिंग एग्जांपल, प्लांट के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और माइटोकॉन्ड्रिया. So in a chloroplast and mitochondria, whatever enzyme is formed, वो सेल के अंदर ही रिएक्शन करेगा, वो सेल से बाहर नहीं आए. So जहां पर वो फॉर्म हो रहा है वहीं पर रिएक्शन दिखाएगा. So this type of enzyme is called it as the endoenzyme, inside. And the second example is exoenzyme. Exoenzymes का meaning क्या है? If they act outside the cell in which they are synthesized are called it as a exoenzyme. Example, enzymes released by many fungi. So fungus जो होते हैं, fungi जो होते हैं, ये इनके enzymes को बॉडी के बाहर सीक्रेट करते हैं और रिएक्शन कहाँ हो रहा है? So whatever whatever enzymes is formed, it is by living cell, बट वो उसका रिएक्शन कहाँ पर दे रहा है? बॉडी के बाहर आने के बाद दे रहा है. सो दिस टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड इट एज एक्सोएंजाइम. एक्सिट, एंडो मींस इनसाइड, जहां पर फॉर्म होगा वहीं पर रिएक्शन दिखाएगा, तो एंडोएंजाइम्स. जहां पर फॉर्म हुआ और बाहर ये दिखा रहा है तो उसको बोलना है एक्सोएंजाइम. नाउ द नेक्स्ट, there are some of the examples in our book also given. These enzymes are synthesized by living cells, retain their catalytic property even when extracted from the cell. यानी कि एक्सो एंजाइम्स का अगर मैंने लिया तो वो फंक्शन सेल के बाहर भी दे रहा है. तो अल्टीमेटली अगर मैंने कहीं पर फॉर्मेंटेशन रिएक्शन किया, कहीं पर मैंने उसको फॉर्म किया और उस एंजाइम्स को मैं स्टोर करके टैबलेट के फॉर्म में दूसरे को भी दे सकता हूँ. सो वही दिया है. These enzymes are synthesized. So exoenzymes से they are synthesized by living cell and retain their catalytic property even when extracted from the cell. सेल से बाहर निकाल दिया फिर भी उसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी वैसे ही रहेगी. लाइकवाइज यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है, देखो, रीनेट टैबलेट. Now what's the meaning of renate tablet? Renate tablet used for coagulating milk protein casein, that is a cheese, contain a renin enzymes that is obtained from stomach of cow. Okay, so what's the meaning of that? तो हम लोग जो चीज वगैरह ईट करते हैं, so what's the meaning of cheese? तो cheese is nothing but a formation product of milk. मिल्क के अंदर जो केसिन प्रोडक्ट केसिन होता है प्रोटीन, उसके अंदर अगर हम लोग एंजाइम्स ऐड करेंगे, रेनिन एंजाइम, तो इन प्रेजेंस ऑफ दैट रेनिन एंजाइम मिल्क का जो केसिन प्रोटीन है कोएगुलेट हो जाए. कोएगुलेट मींस जैसे कि मिल्क के अंदर अगर हम लोग कर्ड ऐड करेंगे तो वो पूरा हार्ड पार्ट सेपरेट हो जाता है, वाटर अलग होता है. सो दिस इज कॉल्ड एज अ कोएगुलेशन. सो वैसे ही केसिन प्रोटीन जो भी है तो ये सेपरेट हो जाएगा और उससे चीज का प्रोडक्शन. सो ये एक एग्जांपल है, दैट इज स्टमक ऑफ काफ. काफ के स्टमक से हमने ये एंजाइम्स निकाले और इसके वजह से टैबलेट के फॉर्म में हमने चीज का प्रोडक्शन भी अभी स्टार्ट कर. सो दिस इज वन टाइप ऑफ एग्जांपल फॉर. नाउ the next part is nature of enzyme. Now the next part, nature.
On the basis of chemical composition, enzymes can put into a two category. केमिकल नेचर के हिसाब से एंजाइम्स के दो टाइप, जैसे हमने प्रोटीन के अंदर देखे थे वैसे यहाँ पर भी purely proteinous enzyme, that is example protease that split a protein. So यहाँ पर देखो क्या दिया है, enzymes के अंदर दो टाइप. Normally enzymes are formed by protein. Enzymes किससे फॉर्म होगा, प्रोटीन से ही फॉर्म. बट कुछ एंजाइम्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही होता है. सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम. एग्जांपल यहाँ पर दिया है प्रोटीएज. प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, तो प्रोटीन का स्प्लिट अप, प्रोटीन को क्या करेगा, स्प्लिट अप करके अमीनो एसिड का फॉर्मेशन करेगा. ओके, सो ये सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन से बना हुआ है. नाउ द सेकेंड वन टाइप ऑफ एंजाइम इज कॉन्जुगेटेड एंजाइम. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दिस, हमने कॉन्जुगेटेड प्रोटीन लिया था, यहाँ पर कॉन्जुगेटेड एंजाइम. Now, what's the meaning of that? Conjugated enzymes are made up of a protein to which a non-protein prosthetic group is attached. यानी कि जिस एंजाइम के अंदर प्रोटीन के साथ में नॉन प्रोटीन ग्रुप भी अटैच हो जाएगा और फिर एंजाइम का फॉर्मेशन होगा. So this is called as a conjugated enzyme. And the non-protein part of this enzyme, it is called as a prosthetic group, which you can see in this picture. आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, देखो यहाँ पर ये एंजाइम से ये प्रोटीन का पार्ट, बट इसमें नॉन प्रोटीन पार्ट ये है. जब तक ये इसको अटैच नहीं होगा तो ये एंजाइम उसकी एक्टिविटी शो नहीं करेगा. सो दिस टाइप ऑफ एंजाइम्स व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज अ कॉन्जुगेटेड एंजाइम. और जिस एंजाइम में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन है, दिस इज कॉल्ड एज अ प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम. एग्जांपल प्रोटीएज. Now the next part, nature of enzymes में next part, apo-enzymes and holo-enzymes. Now what's the meaning of it? जैसे हमने prosthetic group लिया और वैसे अब इसके अंदर दूसरे. Now what's the meaning? Now prosthetic group is firmly bound to a protein component by a chemical bond and is not removed by hydrolysis. Okay, not removed by hydrolysis. If the prosthetic group is removed, protein part of enzyme become inactive. Protein part of enzyme is called as a apo-enzyme. Apo-enzyme with a prosthetic group together form a hollow enzyme. Now you can see that ये जो part है, ये इतना जो part है, this is called as a hollow enzyme. Now what's the meaning of hollow enzyme? तो ये देखो, ये जो hollow enzyme है, इसके अंदर ये जो आपको dark blue color part मिल रहा है, this one is called as the protein part of enzyme. Okay, so if the enzyme, जैसे कि अगर मैंने ये वाला enzyme लिया तो ये enzymes apo enzyme, तो apo enzyme के अंदर देखो ये non protein जो part है वो अभी तक attach नहीं हुआ. Okay, so non protein part it is called as a prosthetic group. Okay, इसी enzymes के अंदर देखो हमने क्या देखा, conjugated enzymes में protein part भी होता है और non protein part भी होता है. नॉन प्रोटीन पार्ट को हमको बोलना है दिस इज प्रोस्थेटिक ग्रुप. प्रोस्थेटिक ग्रुप जो प्रोटीन पार्ट है उसको एकदम हाईली बाइंड रहेगा, तो उसके जो फॉर्मेशन होगा तो इस एंजाइम्स को मैं क्या बोलूंगा, तो दिस एंजाइम व्हिच विल कंसिस्ट ऑफ प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच. यहाँ पर देखो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच फॉर्म में है, तो इस एंजाइम्स को मैं बोलूंगा हॉलो एंजाइम. अगर मैंने इस एंजाइम्स में से नॉन प्रोटीन पार्ट को, ओके, ये जो नॉन प्रोटीन पार्ट प्रोस्थेटिक ग्रुप है इसको निकाल दिया, यहाँ पे देखो नॉन प्रोटीन पार्ट को दूसरा नाम दिया है कोएंजाइम. सो अगर मैंने इसको निकाल दिया तो उसके बाद जो प्रोटीन पार्ट बचेगा उस एंजाइम के पार्ट को बोलना है एपो एंजाइम. बट ये एंजाइम्स इनएक्टिव है, जब तक इसके अंदर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा. एक बार अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप अटैच हो गया तो उसको हम लोग बोलेंगे होल एंजाइम का फॉर्मेशन हो गया और इसको बोलना है एक्टिव एंजाइम. मतलब ये इसका एक्टिविटी शो करेगा, देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट आके अटैच होगा और फिर ये इसका प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा. लेकिन अगर मैंने हॉलो एंजाइम्स यानी कि प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों भी अटैच होते हैं, ऐसे एंजाइम के अंदर से नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि प्रोस्थेटिक ग्रुप को रिमूव कर दिया तब वो फंक्शन नहीं करेगा एंड दिस पार्ट इज कॉल्ड एज अ एपो एंजाइम, जहां पर सिर्फ प्रोटीन का पार्ट हो. ओके, बट ये किसके लिए है, ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स के लिए. नहीं तो आप लोग बोलोगे कि
प्योरली प्रोटीनियस एंजाइम में तो सिर्फ प्रोटीन ही होता है, तो वहां पर तो नॉन प्रोटीन पार्ट नहीं भी है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। सो कॉन्जुगेटेड एंजाइम में जो नॉन प्रोटीन पार्ट होता है उसको हम लोग बोलेंगे प्रोस्थेटिक ग्रुप। प्रोस्थेटिक ग्रुप जब तक है तब तक वो एंजाइम एक्टिव रहेगा और उसको हम लोग बोलेंगे हॉलो एंजाइम। एक बार प्रोस्थेटिक ग्रुप जल्दी तो ऐसे निकलता नहीं है, लेकिन अगर उसको निकाल दिया तो वो एंजाइम नॉन फंक्शनल हो जाएगा और उसको हम लोग बोलेंगे एपो एंजाइम। So this is all about that apo-enzymes and holoenzymes. Now, now the some of the example nature of enzymes में दूसरे part क्या है? There are enzymes which require a certain organic compound and inorganic ions for their activity. कुछ enzymes ऐसे भी हैं जिनको activate होने के लिए कुछ other than enzymes part भी लगता है। जैसे कि देखो, अगर मैंने we are taking a lunch, ओके, लंच में अगर हमने क्या किया, सॉल्ट नहीं ऐड किया, सॉल्ट नहीं भी ऐड किया, फिर भी वो उसके अंदर जो भी कंटेंट है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, वो सब हमारे बॉडी को मिलेगा। बट सॉल्ट नहीं ऐड किया तो जितना फूड हम लोग रेगुलरली रोज खाते हैं उतना फूड ईट करेंगे क्या? नहीं। सो सिमिलरली इन एंजाइम्स देयर आर सम पार्ट जो कि उसको थोड़ा सा एनर्जी या तो वो उसको ज्यादा ये करता है। दिस पार्ट इज कॉल्ड एज, ओके, सो नाउ वी विल सी दैट there are enzymes which require a certain organic and inorganic ions for their activity। यानी कि अगर उस एंजाइम्स को उसकी फुल एक्टिविटी शो करना है तो उसके साथ में उसको ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक कंपाउंड। नाउ व्हिच आर दोस ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड? The organic compound that are tightly attached to protein part, it is called it as a co-enzymes। okay, जिस एंजाइम के अंदर जो ऑर्गेनिक पार्ट वहां पर अटैच होता है प्रोटीन पार्ट से, दिस इज कॉल्ड इट एज अ को-एंजाइम, ऑर्गेनिक पार्ट। नाउ whereas inorganic which are loosely attached to protein part are called it as a cofactor। so now we will see that two word, हमने यहाँ पे दो वर्ड देखे, को-एंजाइम्स एंड को-फैक्टर। को-एंजाइम्स यानी कि जिस एंजाइम में ऑर्गेनिक कंपाउंड टाइटली अटैच होते हैं प्रोटीन पार्ट को। प्रोटीन पार्ट यानी क्या? तो प्रोटीन पार्ट हमने यहाँ पे लिया, देखो यू कैन सी दिस, ये है एपो-एंजाइम, प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम। इसके अंदर को-एंजाइम यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जब अटैच हो जाएगा तो फिर इसको हमको क्या बोलना है? ओके, सो दिस इज कॉल्ड इट एज अ को-एंजाइम। So organic compounds which are attached to a protein part of enzyme, it is called it as a coenzyme. And the inorganic ion which are loosely attached to protein part are called it as a cofactor. So cofactor and coenzyme, ऐसे दो वर्ड हमने देखे। cofactor inorganic ions होते हैं और coenzyme organic compound। Now, which are those? Some of the organic coenzymes are nicotine, amide, adenine, डाइन्यूक्लियोटाइड, दैट इज NAD। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा NAD वर्ड आता है। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट NAD वर्ड? दैट इज निकोटीन अमाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड। देन FMN, व्हाट्स द मीनिंग ऑफ दैट? फेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। देन इनऑर्गेनिक आयंस ऑफ मेटल which acts as a cofactor include a magnesium। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में आपने देखा होगा मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक, आयरन, मैग्नीज या तो रिलीज होता है या तो वो यूटिलाइज होता है। सो दीज आर नथिंग बट वन टाइप ऑफ कोफैक्टर जो कि एंजाइम्स में वर्क करते हैं, उसको एक्टिवेट करते हैं। नाउ आयरन, आयरन Fe++ is a cofactor of enzyme catalyst। Manganese is a cofactor of peptidase and often metal cofactor are referred to as an enzyme activator। So जो मेटल वाले को-फैक्टर यूज होते हैं एंजाइम्स में, उसको दूसरा नेम दिया है एंजाइम एक्टिवेटर, बिकॉज दे आर एक्टिवेटिंग दैट एंजाइम, वो उस एंजाइम की एक्टिविटी को हाई करता है। सो दीज आर दैट को-एंजाइम एंड को-फैक्टर। और वो कौन से हैं वो हमने यहाँ पे। नाउ इन प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम। सो प्रॉपर्टीज कौन से देखो। Proteinous nature of enzyme, it is a one property. Now I already said about that. All enzymes are basically made up of protein. Proteinous nature means, as I already said, the main part of enzyme is protein, but कुछ enzymes में non protein part भी आ जाते हैं, but main part क्या है? Protein.
So all enzymes are basically made up of protein. These three-dimensional conformation. Next part है three-dimensional conformation. उसको ये होता है three-dimensional conformation होता है enzymes को. Now, all enzymes have a specific three-dimensional conformation done. They have one or more active site to which a substrate, that is reactant, combine. The point of active site where a substrate joined to an enzyme, it is called as a substrate binding site. देखो इसके पहले हमने जो enzymes थे, if you see this one, अगर हम लोग यहाँ पर लेंगे तो यहाँ पर कितना साइट है सबस्ट्रेट के लिए, जहां पर सबस्ट्रेट अटैच होगा वो साइट कितनी है, 1 है इस एंजाइम्स में 1. बट मोस्ट ऑफ एंजाइम्स के अंदर एक या तो एक से ज्यादा भी होते हैं. सो enzymes have one or more active site to which a substrate, that is reactant compound. You can see in this picture ये एक एंजाइम है और इसके अंदर देखो ये दो साइट है जहां पर जाके हमारा ये जो सबस्ट्रेट है ये अटैच होगा और फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा. जैसे कि मैंने लैक्टोज, सो लैक्टेज, सपोज करो कि ये ब्लू कलर का लैक्टेज एंजाइम है, यहाँ पर ये दो साइट और यहाँ पर आके क्या अटैच होगा, सबस्ट्रेट लैक्टोज, और फिर उसका प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा, ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज. सो enzymes have one or more active site to which a substrate attach, जहां पर substrate जाके attach होगा और combine. The point of active site where a substrate join to an enzyme, it is called as a substrate binding site. उस site को नाम क्या है, so this site name is called as a substrate binding site करके भी उसको name. Now the next property is catalytic property. Now what's the meaning of catalytic property? Now enzymes are like inorganic catalysts. They influence the speed of biochemical reaction, but themselves remain unchanged. क्या हो जाएगा यहाँ पर, एंजाइम्स जो है ये केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करते हैं बट केमिकल रिएक्शन होने के बाद इनका सरफेस कभी चेंज नहीं होगा. मींस ये खुद के अंदर कोई चेंज नहीं करते, प्रोडक्ट का तो फॉर्मेशन हो जाए, विच यू कैन से दिस. अब देखो ये एक एंजाइम है, इसमें ये दो एक्टिव साइट है. एक्टिव साइट को ये सुक्रोज जो भी है ये एक सबस्ट्रेट है जो आके अटैच हुआ और फिर देखो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया. सुक्रोज में तो चेंज हो गया, सुक्रोज का बन गया ग्लूकोज और फ्रक्टोज, बट एंजाइम्स में कोई चेंज हुआ क्या, नहीं. सो एंजाइम इज रिमेन अनचेंज्ड. एंजाइम्स आर पार्टिसिपेट इन द केमिकल रिएक्शन, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करेगा बट उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा. दूसरे वाले सबस्ट्रेट में चेंज होगा, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट बनेगा जो अलग दिखेगा, बट एंजाइम्स में कोई भी चेंज नहीं होगा. एंजाइम इज रिमेन अनचेंज्ड. तो वही पॉइंट दिया देखो, enzymes are like inorganic catalyst or influence the speed of biochemical reaction, जो बायोकेमिकल रिएक्शन के स्पीड को बढ़ाएगा बट themselves remain unchanged, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होगा. Now the next, after a completion of a reaction and release of the product, they remain active to catalyze again. मतलब कि ये एंजाइम देखो ये एक केमिकल रिएक्शन दिखा दिया तो ये फिर से जो एंजाइम बच गया, अब ये एंजाइम जो है ये फिर क्या करेगा, तो ये फिर से दूसरे सबस्ट्रेट को यानी दूसरे सुक्रोज को जाके अटैच होगा और फिर से रिएक्शन दिखाएगा. इसीलिए a small amount of enzyme can catalyze the transfer of very large quantity of substrate into the end product. यानी कि यहाँ पर लाख सुक्रोज भी मॉलिक्यूल ला दिया और एक ही एंजाइम से फिर भी वो लाखों सुक्रोज मॉलिक्यूल को धीरे 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 किसमें कन्वर्ट कर देगा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्ट कर देगा. वही दिया. फॉर एग्जांपल सुक्रेज इज अ हाइड्रोलाइज. सुक्रेज मींस ये एंजाइम, सुक्रोज ये सबस्ट्रेट है और इसके एंजाइम का नाम है सुक्रेज. Sucrase can hydrolyze a 1 lakh times sucrose as a compare with the own weight. उसके खुद के वेट से भी 1 lakh times bigger सुक्रोज मॉलिक्यूल को वो क्या कर सकता है, एक सिंगल सुक्रेज मॉलिक्यूल कन्वर्ट कर सकता है. तो वो एक प्रॉपर्टी दिया है दैट इज कैटालाइटिक प्रॉपर्टी, दे आर रिमेन अनचेंज्ड. Then the next part is specificity of action. Next property is specificity of action. Now what's the ability of enzyme to catalyze one specific reaction and essentially no other is perhaps more significant property. यानी कि अगर मैंने लिया कि सुक्रेज एंजाइम, तो सुक्रेज एंजाइम सुक्रोज के साथ ही रिएक्शन करेगा, एक ही केमिकल रिएक्शन,
दूसरे के साथ यानी कि लैक्टोज के साथ रिएक्शन करेगा क्या? नहीं। वैसे ही लैक्टेज एंजाइम सुक्रोज के साथ रिएक्शन करेगा क्या? सो दे हैव ओनली वन स्पेसिफिक रिएक्शन। ये सिर्फ एक ही कैटालाइटिक वन स्पेसिफिक रिएक्शन को शो करते हैं एक एंजाइम। ईच एंजाइम एक्ट्स अपॉन अ स्पेसिफिक सबस्ट्रेट, उसका सबस्ट्रेट भी सिंगल ही रहेगा, अलग अलग चेंज नहीं होगा। और अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट, कभी कभी सबस्ट्रेट सिंगल होता है या तो ग्रुप में भी रहेगा। सो या तो ग्रुप ऑफ सबस्ट्रेट या तो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट एक ही रहेंगे, वो चेंज नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, एंजाइम्स आर वेरी सेंसिटिव टू टेम्परेचर एंड, जो टेम्परेचर और जिस पीएच पे वो एक्टिविटी दिखाते हैं उसी टेम्परेचर और उसी पीएच पे एक्टिविटी दिखाएगा। अगर चेंज हुआ तो एक्टिविटी स्लो हो जाएगा। नाउ ईच एंजाइम exhibit highest activity at a specific pH, this is called it as the optimum। जैसे कि मैंने कोई एक एंजाइम लिया कि जो 7 pH यानी न्यूट्रल पीएच पे एक्टिविटी दिखा रहा है, तो वो न्यूट्रल पीएच पे ही एक्टिविटी सबसे ज्यादा दिखा रहा है, तो वो उसका हो गया ऑप्टिमम पीएच। एनी इंक्रीज और डिक्रीज इन अ पीएच कॉजेज अ डिक्लाइन इन एंजाइम, यानी कि अगर उसका ऑप्टिमम पीएच उस एंजाइम का 7 है, तो अगर मैंने 7 से 6 कर दिया, 5 कर दिया, 4 कर दिया, या तो 8 9 10 कर दिया, पीएच चेंज कर दिया, तो उस पीएच के ऊपर उसका रिएक्शन धीरे धीरे कम होता जाएगा और फिर एकदम कम। नाउ एग्जाम्पल, यहाँ पे एग्जाम्पल दिए देखो हमारे बॉडी। एग्जाम्पल, एंजाइम पेप्सिन सिक्रेटेड इन द स्टमक, स्टमक के अंदर जो एंजाइम सिक्रेट, स्टमक का पीएच सभी को पता है एसिडिक, सो शोज हाईएस्ट एक्टिविटी एट ऑप्टिमम पीएच ऑफ 2। अब यहाँ पर एसिडिक पीएच होता है, तो वहां पर जो पेप्सिन एंजाइम है उसका एक्टिविटी कितना है? 2 के ऊपर। ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन ड्यूडेनम, ये इंटेस्टाइन का पार्ट, it is the most active in an optimum pH 9.5, जो कि अल्कलाइन है। both of these enzyme pepsin and trypsin are protein digestive, दोनों का काम क्या है? प्रोटीन का डाइजेशन। बट एक एंजाइम जो है वो एसिडिक पीएच यानी कि 2 पीएच पे ज्यादा वर्क कर रहा है, और दूसरा एंजाइम 9.5 यानी अल्कलाइन। अब 9.5 वाला जो ट्रिप्सिन है, इसको मैंने 2 एसिडिक वाला पीएच दिया, तो वो रिएक्शन नहीं दिखाएगा। वैसे ही जो पेप्सिन है ये एसिडिक वाला एंजाइम है, तो ये और ट्रिप्सिन का 9.5 अल्कलाइन पीएच पे एक्टिविटी नहीं शो। ओके, सो दे हैविंग ऑप्टिमम पीएच, उसी पीएच पे ये ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटी शो करे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेम्परेचर। टेम्परेचर, enzymes are destroyed at higher temperature of 60 to 70 or below, they are not destroyed but become inactive। जैसे कि अगर मैंने मेरे बॉडी का एग्जाम, तो हमारे बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना है? 37। सो नॉर्मली ये जो एंजाइम से ज्यादातर जो एंजाइम्स हमारे बॉडी में है, इसका ऑप्टिमम पीएच कितना रहेगा? 20 से लेके 30। उससे ज्यादा हुआ तो एंजाइम्स प्रोटीन के बने होते हैं, तो वो डीनेचर हो जाएंगे, खराब हो। बट अगर लो हुआ तो कोई प्रॉब्लम, लो हुआ तो एक्टिविटी स्लो होगा। यू कैन सी दैट ये 0 डिग्री पे भी एक्टिविटी दिखा रहा है, बहुत कम दिखा रहा है। 10 पे थोड़ा हाई है, 20 पे थोड़ा हाई, 30 पे हाई, 40 पे एकदम ज्यादा। उसके बाद फिर धीरे धीरे डीनेचर होके वो एंजाइम क्या हो जाएगा? खराब। सो दिस दिस इनएक्टिव स्टेट इज टेम्परेरी, यानी कि लो टेम्परेचर पे या तो थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे उसका इनएक्टिव होता है एंजाइम, और ये टेम्परेरी स्टेट। एंड एंजाइम्स कैन बिकम एक्टिव एट अ सुटेबल टेम्परेचर, यानी कि मुझे अगर कोई एंजाइम, जैसे कि अगर मुझे पेट्री प्लेट पे मुझे कुछ ग्रोथ की है और मुझे अब ग्रोथ को स्टॉप करके रखना है, तो मैं रेफ्रिजरेटर में डाल दूंगा, तो वो फिर एंजाइम्स की एक्टिविटी स्लो हो जाएगा। फिर मुझे फिर से वो प्रोडक्ट चाहिए, तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया, टेम्परेचर हाई हुआ और उसने फिर से वो एक्टिवेट होकर उसका फंक्शन दिखा। बट अगर मैंने हाई टेम्परेचर पे रख दिया तो क्या हो जाएगा? वो एंजाइम डीनेचर होके खराब हो। Most of the enzymes work at an optimum temperature between 20 to 35 degrees Celsius, जो कि हमारे बॉडी का आइडियल टेम्परेचर। There are various way of naming an enzyme. Enzymes are named by adding a suffix ASC to a name of a substrate on which they act. Example, जैसे कि हमने बहुत सारे पहले भी देखे हैं, लैक्टेज, लैक्टेज पीछे क्या है? एस। सुक्रेज, यहाँ पे देखो न्यूक्लियेज, प्रोटीएज, मीन जो सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर ये एंजाइम एक्शन क्रिएट करने वाला है, उसी के पीछे हमको सबस्ट्रेट के पीछे क्या लगा देना है?
ASC word and the name of that enzyme is according to that. जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखो प्रोटीएज यानी प्रोटीन को ब्रेक करता है, तो हमने प्रोटीन के अंदर सिर्फ चेंज किया पीछे ASC। सुक्रोज के ऊपर जो एक्ट करेगा सुक्रोज, वहां पर हमने चेंज कर दिया पीछे के 3 वर्ड ASC सुक्रेज। न्यूक्लिक एसिड को जो catalyzed करेगा, this is nuclease. Okay, so the first one common naming of the enzyme is we are adding a ASC to the substrate. this substrate के ऊपर वो enzyme act करने वाला है, उसी substrate के नेम के अंदर हमने पीछे क्या लगा दिया ASC word and this is called it as a nomenclature. ये first nomenclature है and which is very common, ये most of सभी के लिए common. Now the enzymes can be named according to the type of function they perform. कभी कभी उसके फंक्शन के हिसाब से भी हम लोग उसको नेमिंग करते हैं। जैसे कि एग्जांपल dehydrogenase removes the hydrogen. ओके, एंजाइम्स का नेम क्या है dehydrogenase. ओके, dehydro, d means to remove, hydro means a hydrogen. So हमने किसी रिएक्शन में से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल को रिमूव किया, so the name of that enzyme is called as a dehydrogenase. कार्बोक्सिलेज एडिशन ऑफ कार्बन ऑक्साइड. ओके, यहाँ पर हमने एडिशन किया, सो दैट इज कार्बोक्सिलेज. डी कार्बोक्सिलेज रिमूवल ऑफ CO2, इसी रिएक्शन में से हमने CO2 को रिमूव किया, सो द नेम ऑफ एंजाइम इज कॉल्ड एज अ डी कार्बोक्सिलेज. ऑक्सीडेज, इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन पार्टिसिपेट हो रहा है, ऐड हो रहा है, सो दिस इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेज. So the second one naming according to their function, वो कौन से टाइप के फंक्शन परफॉर्म करेंगे वैसे हमने. Now the third one, some of the enzymes are named according to the source from which they obtain. Means कौन से सोर्स से मिला, जैसे कि एग्जांपल पेपेन फ्रॉम पपाया, ये पपाया प्लांट से मिला है, उसी फिर उस एंजाइम को नाम दे दिया उसके सोर्स के हिसाब से पेपेन. ब्रोमोलेन फ्रॉम मेंबर ऑफ ब्रोमोलिसिया फैमिली, दैट इज पाइनएप्पल. तो इसका फैमिली का नेम था ब्रोमोलिसिया, तो हमने उसके नाम दे दिए ब्रोमेलिन. ओके, सो दिस इज सोर्स, ये कौन से सोर्स से मिल रहा है उसके हिसाब से हमने थर्ड टाइप का नेमिंग किया. नाउ द नेक्स्ट वन नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड. इंटरनेशनल कोड पूरे वर्ल्ड वाइड सभी जगह सेम है. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल कोड ऑफ एंजाइम नोमेनक्लेचर, the name of enzyme ends with an ASE, यानी कि हर एक एंजाइम के अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर के हिसाब से हर एक एंजाइम का जो एंजाइम से उसके अंदर 2 वर्ड्स होने चाहिए. इसके अंदर जो आपका एंडिंग वाला पार्ट है वो किससे एंड होना चाहिए ASE एंड कंसिस्ट ऑफ डबल नेम, और उसके अंदर मोस्ट ऑफ डबल नेम. नाउ the first name indicates the name of substrate upon which the enzyme acts, यानी कि वो कौन से सबस्ट्रेट के साथ में रिएक्शन करने वाला है. तो पहला नेम सबस्ट्रेट का नेम होना चाहिए और दूसरा नेम एंड द सेकंड नेम इंडिकेट द रिएक्शन कैटलाइज, यानी कि वो कौन से टाइप का रिएक्शन देगा वो सेकंड होना चाहिए. और लास्ट का एंडिंग वाला जो सेकंड नेम है उसमें क्या लगना चाहिए ASC वर्ड लगना चाहिए. सो दैट इज द इंटरनेशनल कोड के हिसाब से, मींस ये वर्ल्ड वाइड सभी जगह सेम है, ये चेंज नहीं हो. नाउ एग्जांपल पायरुविक डी कार्बोक्सिलेज. अब देखो यहाँ पर सबस्ट्रेट का नेम क्या है, so the name of substrate is pyruvic acid, so this is pyruvic. then डी कार्बोक्सिलेज वो रिएक्शन क्या करने वाला है, तो CO2 को रिमूव करने वाला है, so that is called as a डी कार्बोक्सिलेज. और लास्ट में देखो AS, so pyruvic डी कार्बोक्सिलेज catalyze the removal of CO2 from substrate pyruvic acid. So the first name for the name of substrate and the second name that is whatever the function they act, वो कौन से टाइप का फंक्शन दिखाएगा. तो दिस इज इंटरनेशनल कोड ऑफ फंड, ये इंटरनेशनल सभी के लिए सेम रहेगा और ये नॉर्मली इससे भी हम लोग इजी जाएगा. नाउ द नेक्स्ट वन, सिमिलरली द एंजाइम ग्लूटामेट पायरुवेट ट्रांस अमीन. अब यहाँ पर देखो नेम ऑफ सबस्ट्रेट का नाम क्या है पायरुवेट. ओके, ग्लूटामेट पायरुवेट, सो द नेम ऑफ सबस्ट्रेट हो गया ग्लूटामेट. पायरुवेट ओके सबस्ट्रेट है. ट्रांसअमीनेज यानी कि ये ट्रांसफर कर रहा है, क्या ट्रांसफर कर रहा है, सो इट विल ट्रांसफर द सबस्ट्रेट ग्लूटामेट. सो देखो फर्स्ट वाला नेम है ग्लूटामेट, ये सबस्ट्रेट का नेम है और इसने इसका ट्रांसअमीनेशन यानी कि ये एक अमीनो एसिड है,
जिसको दूसरे अमीनो एसिड में कन्वर्ट किया है एंड अनदर सबस्ट्रेट में क्या कन्वर्ट किया, पायरुवेट. ओके, सो similarly the enzyme glutamate pyruvate transaminase catalyze the transfer of amino group from substrate glutamate to another substrate pyruvate. यानी glutamate substrate से pyruvate के पास अमीनो ग्रुप को क्या कर दिया है, ट्रांसफर कर दिया. So this is the name of last second name transfer. Now classification of enzyme. Second part is classification of enzyme. Now the first one enzyme is oxidoreductase. देखो नेमिंग के अंदर ही आ गया, oxidation and reduction. So those the reaction which will consist of oxidation and reduction, both the reaction, this is called as the oxidoreductase. तो वहाँ पे दिया. These are enzyme catalyzing oxidation and reduction reaction by transfer of hydrogen and oxygen. तो यहाँ पर oxidation और reduction दोनों भी हो रहा है. Example, alcohol dehydrogenase enzyme. You can see in this picture, यहाँ पर alcohol in presence of NAD plus enzyme, NAD plus substrate, और इसका कन्वर्जन किस में हो गया, अल्डिहाइड NAD, यानी कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हुआ और NAD ने एक्सेप्ट किया, यानी कि यहाँ पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों भी रिएक्शन हुए हैं. So this is called as the oxidoreduction. Now the second one type of classification, transferase. यहाँ पर ट्रांसफर होगा. Now these enzyme catalyze the transfer of certain group between a two molecule. सिर्फ किसी ग्रुप को एक मॉलिक्यूल से दूसरे ग्रुप में सिर्फ क्या करना है, ट्रांसफर. The name of enzyme is glucokine. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो, ग्लूकोज in presence of ATP adenosine triphosphate, in presence of enzyme glucokinase, it is converted into glucose 6-phosphate plus ADP, यानी कि ATP adenosine triphosphate का कन्वर्जन हो गया ADP adenosine diphosphate, और यहाँ से जो 1-phosphate मॉलिक्यूल रिमूव हुआ वो ग्लूकोज के 6 नंबर कार्बन पे अटैच हो गया. तो यहाँ पर फॉस्फेट का ATP से ग्लूकोज की तरफ ट्रांसफर किया. सो दिस इज कॉल्ड एज द ग्लूकोज 6-phosphate का फॉर्मेशन. थर्ड वन, हाइड्रोलेजेस. These are enzyme catalyze hydrolytic reaction, जहाँ पर हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन होगा. This class includes enzymes like amylase, हमारा सलाइवा जो होता है वहाँ पर, प्रोटीएज प्रोटीन का डाइजेशन, लाइपेज लिपिड का डाइजेशन. एग्जांपल, सुक्रेज. So you can see that sucrose is a substrate in presence of water. It is in presence of enzyme that is sucrase. It is converted into glucose and fructose. So यहाँ पर क्या हुआ, कैटालाइटिक रिएक्शन हुआ, हाइड्रोलाइटिक. हाइड्रोलाइटिक, लाइटिक यानी कि यहाँ कट हुआ. हाइड्रो मींस इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. सो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर यहाँ पर सुक्रोज का कन्वर्जन ग्लूकोज और फ्रक्टोज हुआ. सो कैटालाइटिक रिएक्शन भी हुआ प्लस वाटर के प्रेजेंस में हुआ. सो दिस इज कॉल्ड एज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन. Lysis. These enzymes are involved in elimination of reaction, result in the removal of group of atom from substrate molecule to leave a double bond. Okay, to leave a double bond. Example, it include aldoses, carboxylase, dehydrate. Example, fumarate, hydrate. यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, histidine, it is a one type of chemical in presence of histidine decarboxylase. डीकार्बोक्सिलेशन मीनिंग क्या है, तो कार्बन CO2 मॉलिक्यूल रिमूव होगा. तो यहाँ पर देखो हिस्टाडाइन से CO2 मॉलिक्यूल रिमूव हो गया एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू अ हिस्टामाइन. ओके, सो लाइसिस में भी लाइटिक रिएक्शन हुआ बट CO2 मॉलिक्यूल वहां से रिमूव हो रहा है और जिसके वजह से इट लीव अ डबल बॉन्ड. जब वहां से वो मॉलिक्यूल निकलेगा तो वहां पर डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के बीच में फॉर्म हो जाएगा. सो दिस इज कॉल्ड एज लाइसिस. आइसोमरेज. You know that isomers, they having a chemical formula same but structural arrangement सिर्फ सेम हो सेम रहेगा. जैसे कि यहाँ पर हमने ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का भी केमिकल फॉर्मूला लिया तो C6H12O6 बट स्ट्रक्चर अलग अलग. तो यहाँ पर सिर्फ चेंज हुआ है आइसोमर. ओके, सो दिस एंजाइम कैटलाइज अ स्ट्रक्चरल रीअरेंजमेंट विद इन द मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल वही है बस उसमें स्ट्रक्चर चेंज कर दिया. Their nomenclature is based on the type of isomerism. Thus, these enzymes are identified as the racemase, epimerase, isomerase, mutases and xylose isomerase. तो यहाँ पे देखो
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज, यानी कि यहाँ आइसोमेरिज्म हुआ. आइसोमेरिज्म मीन्स स्ट्रक्चर सेम है, सॉरी मॉलिक्यूल सेम है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, बट वहां पर स्ट्रक्चर चेंज हुआ. तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में सिर्फ कन्वर्ट हो. नेक्स्ट वन इज ligase and synthetase. These are the enzymes which catalyze the covalent linkage of the molecules, utilizing the energy obtained from hydrolysis of energy-rich compounds like ATP and GTP, that is adenosine triphosphate and guanine triphosphate. ऐसे जो मॉलिक्यूल्स है जिनके ऊपर एनर्जी होता है, सो इस एनर्जी का यूटिलाइजेशन यहाँ पर क्या होता है, होता है. So this is called as an example. Glutathione synthetase and pyruvate decarboxylase. Now you can see that pyruvate in presence of CO2 and ATP, in presence of pyruvate carboxylase, यानी कि CO2 molecule यहाँ add होगा, and that pyruvate is converted into oxaloacetate. But at the same time यहाँ पर क्या हुआ, ATP is converted into ADP plus PI, और ये PI जो भी है फॉस्फेट, यहाँ पर एनर्जी क्या हो रहा है, फॉर्म हो रहा है, यूटिलाइज हो रहा है. ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ, ATP that is adenosine triphosphate का कन्वर्जन ADP that is adenosine diphosphate में हुआ, और एनर्जी रिच कंपाउंड का फॉर्मेशन हुआ. फॉस्फेट मॉलिक्यूल जो ब्रेक होगा तो उस टाइम एनर्जी का फॉर्मेशन. Now, the next one part is mechanism of enzyme action, which is also a new topic in that. Now, mechanism of enzyme action. The basic mechanism by which enzyme catalyze a chemical reaction begins with the binding of substrate to the active site of an enzyme. Okay, क्या होगा यहाँ पर जो भी enzymes है, you can see in this picture, यहाँ पर ये एक enzymes है और enzymes के अंदर एक specific site है जहाँ पर substrate जाके attach हो. Okay, and this site is called it as a active site. इस एक्टिव साइट पे सबस्ट्रेट जाके जब अटैच होगा तो फिर इसके बाद फॉर्म होगा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. ओके, सो वही पॉइंट दिया, द बेसिक मैकेनिज्म बाय व्हिच एंजाइम कैटलाइज अ केमिकल रिएक्शन begins with the binding of substrate. जो सबस्ट्रेट है वो एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम पे जब बाइंड होगा तब जाके रिएक्शन स्टार्ट. The active site is a specific region of enzyme which combines with the substrate. Active site क्या है? So the active site is a specific region of the enzyme which combines with the substrate. जो कि किसको अटैच होगा? सबस्ट्रेट को जाके अटैच होता है, और एक्टिव साइट किसके पास है? एंजाइम के पास. Now the next part, the binding of a substrate to the enzyme causes a changes in a distribution of electron in the chemical bond of substrate and ultimately causes the reaction that leads to the formation of product. When this substrate is attached to the active site of enzyme, तो substrate के अंदर कुछ electronic configuration यानी कि electron का movement होगा, and after that this substrate is converted into product. जैसे कि मैंने लिया कि lactose, ओके, या तो सुक्रोज ले. सो लैक्टोज क्या होगा, तो ये जैसे ही यहाँ अटैच होगा तो उसमें चेंज होगा, एंड नाउ दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज एंड गैलाक्टोज, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो गया. तो वैसे ही यहाँ पर भी होगा कि कोई भी एंजाइम अगर एक्टिव साइट पे अटैच होगा तो वहां पर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होगा, एंड आफ्टर दैट दिस सबस्ट्रेट इज कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट. नाउ द प्रोडक्ट आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंजाइम surface to regenerate the enzymes for another cycle. There are two modes of explain the mechanism of forming an enzyme substrate complex. तो ये जब प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा तो आफ्टर दैट ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्म हो जाने के बाद एंजाइम्स को लीव कर दे, और फिर ये एंजाइम फिर से दूसरे किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके फिर से सेम रिएक्शन क्या करेगा, प्रोसीड करेगा. ओके, फॉर दिस मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन वी हैविंग अ टू टाइप ऑफ मॉडल. इसके लिए हमको प्रोवाइड करने के लिए दो मॉडल्स यहाँ पे. द फर्स्ट वन मॉडल इज लॉक एंड की मॉडल. नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ, जैसे लॉक और की होता है वैसे यहाँ पे दिखा है. नाउ यू कैन द स्पेसिफिक एक्शन ऑफ एंजाइम विद अ सिंगल सबस्ट्रेट कैन बी एक्सप्लेन्ड using a lock and key analogy first postulated in 1984 by Emil Fischer.
Now, in this analogy, the lock is the enzyme and the key is the substrate. Only the correctly sized key substrate fit into the keyhole of an active site of the lock of them. यानी कि हमारे घर में जो लॉक होता है, देखो ये जो भी है लॉक एंड की मॉडल, ये नॉर्मली जिस एंजाइम को सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट होता है उसके लिए ये मॉडल बना। यहाँ पर क्या लिया है, इन्होंने बोला है कि हमारे घर पे जो लॉक होता है, सपोज करो कि वो लॉक यानी क्या है, एंजाइम, और उस एंजाइम के अंदर जहां हम लोग की डालेंगे तो जो प्लेस है जहां पर की हम लोग डालेंगे वो प्लेस यानी उसका एक्टिव साइट है। अब देखो उस लॉक में दूसरा कोई की अगर हम लोग डालेंगे तो चेंज जाएगा क्या, वो नहीं जाएगा। सो जैसे एक लॉक को सिर्फ एक ही की होता, दूसरा की वहां नहीं जाएगा, वैसे ही एक एंजाइम का सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट हो सकता है, वैसा ही सिमिलर, वैसे सिमिलर बहुत सारे सबस्ट्रेट जा सकते हैं, बट वही सबस्ट्रेट जाएगा, दूसरा नहीं जाएगा। सो एज लाइक एक की एक लॉक में जाता है दूसरी साइड में, वैसे ही एक सबस्ट्रेट एक ही एंजाइम के साथ रिएक्शन प्रोड्यूस करेगा, दूसरे एंजाइम के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। सो वो यहाँ पे दिया है, यू कैन सी दैट। सपोज करो कि ये एक लॉक है, तो लॉक को जहां हम लोग की डालेंगे वो है ये एक्टिव साइड। तो यहाँ पर ये सबस्ट्रेट सुक्रोज है, सुक्रोज एक्टिव साइड को अटैच हुआ और उसका कन्वर्जन देखो किस में हो गया, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बट लॉक में कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ। ओके, सो ऐसे करके लॉक एंड की मॉडल का एक्सप्लेनेशन दिया। Now the second one model for mechanism of enzyme action, that is Postland. Okay, ये second जो model है, this is induced fit model, flexible model. This is very much interesting और अच्छा model है lock and key से। अब इसमें क्या बोला? So this model was proposed by Postland in 1959. Proposed the induced fit theory, which states that approach of a substrate induces a conformation change in the enzyme. देखो फर्स्ट वाले में हमने क्या देखा था कि एंजाइम्स जो है वो लॉक है, की जो है वो सबस्ट्रेट है, की अंदर जाएगा और फिर वहां पे चेंज कुछ होगा और फिर प्रोडक्ट का फॉर्म। बट वहां पर एंजाइम्स लॉक में कोई चेंज होता है क्या, नहीं। बट यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने दिया है कि ये जो एंजाइम्स है, ओके, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है। ओके, एंजाइम जो है ये थोड़ा फ्लेक्सिबल है। जब उसको सबस्ट्रेट, ओके, जब उसको सबस्ट्रेट आके अटैच होगा तो उस टाइम वो उसके बॉडी में यानी कि एक्टिव साइट में थोड़ा सा कंफर्मेशन चेंज करता है, जिसके वजह से वो एंजाइम्स आराम से वहां पर फिट होता है। तो ऐसे यहाँ पे दिया है, तो वही दिया है देखो, which states that approach of a substrate induces a conformation change in the enzyme. जैसे ही substrate enzyme को attach होगा तो उस time enzymes में भी थोड़ा सा change होगा. It is more accepted model to understand the mode of action of enzyme. Unlike the lock and key model, the induced fit model shows that the enzymes are rather flexible structure. लॉक के अंदर कोई चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पर एंजाइम्स में इन्होंने क्या बोला है, एंजाइम थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, विच इन विच एक्टिव साइट कंटिन्यूअसली रीशेप, और उसका एक्टिव साइट उसके सबस्ट्रेट के हिसाब से थोड़ा बहुत चेंज होगा, पूरा चेंज नहीं होगा, बट सबस्ट्रेट जब अटैच होता है तो थोड़ा बहुत ये खुद में चेंज करता है. So active site continuously reshaped by it interaction with the substrate until the time of substrate is completely bound. तो जब तक इसका सबस्ट्रेट जो है इस एंजाइम्स को अटैच नहीं होगा तब तक वो उसके बॉडी में थोड़ा थोड़ा कंफर्मेशनल चेंज क्या करेगा, करता रहेगा, और इसके बाद में सबस्ट्रेट जो है ये कंप्लीटली बाउंड हो जाएगा उस, और फिर उसमें चेंज नहीं. So it is also the point at which the final form and a shape of the enzyme is determined. तो यहाँ पर एंजाइम जो है वो एक थोड़ा सा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर है, जब वो सबस्ट्रेट उसको अटैच होगा तो वो सबस्ट्रेट के हिसाब से जब तक वो पूरी तरह एंजाइम्स को अटैच नहीं हो रहा है तब तक वो क्या करेगा, खुद में थोड़ा बहुत चेंज करेगा. दिस इज कॉल्ड एज द कंफर्मेशनल चेंज जो एंजाइम्स में होगा, और एक बार अगर वो पूरा अटैच हो गया फिर वो उसका एक्शन स्टार्ट करके उसका प्रोडक्ट में फॉर्मेशन कर देगा. So this is all about that flexible model and induced fit model. Just a minute. Now the next part of it, that is factor affecting enzyme activity. यानी कि enzymes और substrate का जब ये reaction होगा, so at that time which are the factors जो कि enzymes के जो action है उसको affect कर सकते.
The first one factor affecting the enzymes, that is concentration of substrate, यानी कि कितना सबस्ट्रेट हम लोग कर रहे हैं, सबस्ट्रेट यानी कि जिसके साथ उस एंजाइम्स को रिएक्शन कर. नाउ increase in the substrate concentration gradually increases the velocity of enzyme activity within the limited range of substrate level. A rectangular hyperbola is obtained when a velocity is plotted against the substrate concentration. यानी कि यहाँ पर देखो क्या किया है इन्होंने, एक्स एक्सिस के ऊपर सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन दिया है. यानी कि अगर हम लोग समझो लैक्टेज एंजाइम हमने लिया है और लैक्टोज जो भी ये सबस्ट्रेट है, तो सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन कितना लिया है, बहुत सारा, यानी कितना लिया है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन इन्होंने एक्स एक्सिस पे लिया है. वाई एक्सिस पे जब ये रिएक्शन हो रहा है तो कितना फास्ट हो रहा है वो वाई एक्सिस पे प्लॉट. सो व्हेन यू सी दैट कि जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रहा है, बट एट अ सर्टेन लेवल, एक सर्टेन लेवल तक इंक्रीज 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 होता ही रहे. तो वही पार्ट दिया है, इंक्रीज इन द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेजुअली इंक्रीजेस द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम. जैसे जैसे हम लोग सबस्ट्रेट का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे आपको वेलोसिटी क्या मिलेगा, देखो ए पॉइंट पे सबस्ट्रेट कम था, बी पे थोड़ा हाई किया तो और ज्यादा हो गया वेलोसिटी, सी पे और हाई किया सबस्ट्रेट तो और भी ज्यादा हो गया वेलोसिटी. A rectangular hyperbola, ये जो डायग्राम हमको मिला है एस शेप में, this is called it as a rectangular hyperbola is obtained when we are taking that graph. Three distinct phases, that is A, B, C of the reaction are observed in a graph, where V is a measure velocity, V max is a maximum velocity. ज्यादा से ज्यादा हमको कितना वेलोसिटी मिल रहा है तो इतना ही मिलेगा, इसके बाद ज्यादा नहीं होगा, इतना ही हाई मिलेगा. सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन, इसके अंदर एस का मीनिंग क्या है, सो एस इज द मीनिंग ऑफ सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड के एम इज अ माइकलिस मेल्टन इक्वेशन, जो कि एक साइंटिस्ट ने ये इक्वेशन फॉर्म. नाउ वी विल सी दैट माइकलिस मेल्टन इक्वेशन क्या. सो km और माइकलिस मेल्टन कांस्टेंट, इट इज डिफाइंड एज द सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर. ओके, नाउ मोल और लीटर जो भी है, लीटर के अंदर इतने मोल्स जो भी है, ये to produce the half of the maximum velocity in an enzyme catalyst. यहाँ पर maximum velocity, ये half velocity, आधा से आधा maximum velocity किस point पे form करेगा, वो वाला point substrate का, यानी क्या होता है Km, that is Michaelis Menten constant होता है. substrate का concentration half maximum velocity लाने तक. It indicates that half of the enzyme molecule, that is 50%, are bound with the substrate molecule when a substrate concentration equal to Km value. जब substrate concentration Km value तक आ जाएगा तब तक हमको half जो भी है मिल जाए. Now the next part, that is the concentration of substrate में Km is a constant. Km is a constant and characteristic features of given enzyme. It is represented for measuring a strength of ES, that is enzyme substrate complex जो भी है, इसका strength कितना है उसके लिए हम लोग ये formula Km, that is Michaelis Menten equation जो भी use करते हैं. At a low Km value indicates a strong affinity between the enzymes and substrate, whereas a high Km value reflects the weak affinity between them. यानी कि अगर हम लोग लो से लो रखेंगे Km value तो एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर जो भी है एफिनिटी ज्यादा से ज्यादा रहे. बट अगर हाई कर दिया अगर हम, ओके, अगर Km वैल्यू अगर हाई हो रहा है तो उस टाइम क्या होगा, वीक एफिनिटी, यानी कि एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर एफिनिटी थोड़ी सी कम हो जाए. एफिनिटी ज्यादा कब रहेगा, जब Km वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, एक पॉइंट पे लो रखेंगे तब. For a majority of the enzymes, the Km value, it is in the range of 10 raised to minus 5. Okay, 10 raised to है, ये थोड़ा सा चेंज हो गया है, 10 raised to minus 5 to 10 raised to minus 2 moles, okay, per liter जो है वो इसका इक्वेशन का. Now the next part, the rate of enzyme reaction is directly proportional to the concentration of the enzyme. का जो reaction है वो किस पे डिपेंड है, सबस्ट्रेट के concentration. You can see in this picture, हम लोग अगर सबस्ट्रेट का concentration हाई करेंगे तो हमको वैल्यू भी हाई मिलेगा. You can see that, okay, the rate of enzymatic reaction directly proportional to the concentration of substrate. तो जितना हम लोग सबस्ट्रेट ऐड करेंगे उतना ज्यादा हमको रिएक्शन. The rate of reaction is also directly proportional to the
स्क्वायर रूट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंजाइम। यू कैन सी दैट अगर एंजाइम से नहीं है, इफ देयर इज अ नो एंजाइम, तो ये रिएक्शन जो भी है आपको प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन एकदम जीरो के बराबर। जब हमने एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन 1x लेगा यानी कि वन टाइम लिया, सो ये हमको हाफ दे रहा है। और अगर हम लोग जितना जितना एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करेंगे, उतना आगे ही क्या होगा, ये हमारा जो भी प्रोडक्ट का कॉन्सेंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। यहाँ पे देखो वन टाइम लिया है एंजाइम, यहाँ पर टू टाइम। It means that the rate of reaction also increases with the increase in a concentration of enzyme. जैसे जैसे हम लोग एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करेंगे, वैसे वैसे हमको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन मिलेगा। तो वो पॉइंट इन्होंने यहाँ पे दिया। That is, it means the rate of reaction also increases with the increase in a concentration of enzyme. And the rate of reaction also decreases by decreasing the concentration of enzyme. यानी कि अगर हम लोग एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन कम करेंगे तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन भी हमको कम मिलेगा। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर 2x है वो ज्यादा है, 1x यानी कि वन टाइम एंजाइम लिया तो कम हो गया, जब नो एंजाइम्स लिया तो और भी कम हो गया। तो वो एक पॉइंट इन्होंने दिया है, दैट इज एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन का अफेक्ट क्या होगा, वो पॉइंट। नाउ टेम्परेचर क्या अफेक्ट करेगा, आज ऑलरेडी नो दैट हर एक एंजाइम्स का ऑप्टिमम टेम्परेचर अलग अलग होता है। ओके, हर एक एंजाइम का ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो अलग अलग। नाउ द एंजाइमेटिक रिएक्शन अकर एट अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस इज एवरेज नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इन होम्योथर्म। यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होम्योथर्मिक हम लोग एनिमल है, तो हमारे बॉडी के अंदर मोस्ट ऑफ जो एंजाइम्स है वो ज्यादातर कौन से टेम्परेचर में वर्क करते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस। The rate of chemical reaction is increased by rise in a temperature, but there is a true, this is true only over a limited range of temperature. Enzymes rapidly denature at a temperature above 40. You can see that जैसे जैसे हम लोग 40 डिग्री तक टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, तो एंजाइम का कॉन्सेंट्रेशन जो भी है प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हमको यहाँ पे ज्यादा ज्यादा। बट जैसे जैसे हम लोग 40 के ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर, तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन धीरे धीरे लो हो रहा है और बाद में ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि लिए उसके आगे एंजाइम्स प्रोटीन के बने हैं और ज्यादा टेम्परेचर में ये जो प्रोटीन का एंजाइम से ये डीनेचर होके खराब हो। ओके, लो में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, उसको हम लोग फिर से यूज कर सकते हैं, मतलब रेफ्रिजरेटर में रख दिया एंजाइम को, फिर दूसरे दिन यूज किया बाहर निकाल के हो। बट अगर हमने ज्यादा टेम्परेचर में स्टोर करने रख दिया तो वो डीनेचर होके खराब। The activity of enzyme is reduced at low temperature. जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर लो करेंगे तो एक्टिविटी ऑफ एंजाइम भी क्या होगा, धीरे धीरे लो होता जाएगा। द टेम्परेचर एट विच एंजाइम शो मैक्सिमम एक्टिविटी, कोई भी एंजाइम्स का हम लोग बोल नहीं सकते। अब हमारे बॉडी के अंदर वो 37 उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, जहाँ पे वो सबसे ज्यादा देखा, जैसे कि यहाँ पर जो एंजाइम्स इन्होंने यूज किया है, इसका ऑप्टिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा रिएक्शन देने का कैपेसिटी 40 डिग्री। बट अब अगर मैंने लिया कि दोज बैक्टीरिया हु आर लिविंग इन द हॉट स्प्रिंग, गर्म पानी के कुंड में जो रहते हैं, तो वो बैक्टीरिया तो 90 या 100 डिग्री के ऊपर ज्यादा सुटेबल है, तो उनके लिए अलग रहेगा। तो हर एक एंजाइम के लिए अलग अलग है। बट अगर हम लोग हमारे बॉडी का एग्जांपल लेंगे तो जिस टेम्परेचर पे वो एंजाइम सबसे ज्यादा एक्टिविटी दे रहा है, वो टेम्परेचर उस एंजाइम के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। और ये अलग अलग एंजाइम के लिए वैरी करता है, बट हमारे बॉडी का लिया तो 37 से लेके 40। नाउ द इफेक्ट ऑफ पीएच, जैसे हमने टेम्परेचर का इफेक्ट लिया, अब वैसे ही इफेक्ट ऑफ पीएच का। सिमिलर टू टेम्परेचर देयर इज also a pH at which enzyme will catalyze the reaction at maximum rate. Okay, so जिस pH पे वो एंजाइम सबसे ज्यादा रिएक्शन देगा, this is called as the optimum pH of that enzyme. Every enzyme has a different optimum pH value. The enzyme cannot perform its function beyond the range of its. अगर हमने लो या हाई कर दिया तो धीरे धीरे उसका एक्टिविटी क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। सो इस एक्टिविटी पे जिसके ऊपर ये एंजाइम, और पीएच भी अलग अलग है। हमने लिया था जो स्टमक के अंदर एसिडिक पीएच है, तो वहां पर 2 पीएच के ऊपर ही वो एंजाइम ज्यादा है। इंटेस्टाइन में बेसिक पीएच है, तो 8 और 9 पीएच पे वो ज्यादा एक्टिविटी करता है। तो हर एक एंजाइम का ऑप्टिमम पीएच वैल्यू भी क्या रहेगा, अलग अलग। एंड द लास्ट वन पार्ट, अदर सब्सटेंस।
The enzyme's action is also increase or decrease in the presence of some other substance such as coenzymes, activators and inhibitor. Now which are those? Okay, ये तो हमने वर्ड ऑलरेडी देखा था, इसमें जस्ट एक वर्ड ये आया है नया, inhibitor. Now most of the enzymes are a combination of coenzyme and apo-enzyme. Okay, दो enzymes क्या है वो हमने ऑलरेडी देखा था. Now activator are inorganic substance which increases the enzyme activity. Activator यानी क्या है? तो एक्टिवेटर जैसे ही वहां पर अटैच हो जाएगा तो वैसे ही यू कैन सी इन दिस पिक्चर, यहाँ पर ये एक्टिवेटर के लिए अलग से इस एंजाइम में साइट है. जैसे ही ये एक्टिवेटर इस एंजाइम को अटैच होगा तो ये इस एंजाइम को एक्टिवेट कर देगा और फिर सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल यहाँ पर अटैच करके उसका रिएक्शन स्टार्ट होता है. बट इनहिबिटर का मीनिंग क्या है? इनहिबिटर मतलब स्टॉप का उल्टा रिएक्शन. इनहिबिटर इज द सब्सटेंस which retards the enzyme activity. यानी कि देखो ये इनहिबिटर, यहाँ पर एक्टिवेटर अटैच होना चाहिए था बट यहाँ पे क्या अटैच हो गया? इनहिबिटर. अब अगर इनहिबिटर अटैच हो गया तो इसके वजह से एंजाइम का देखो स्ट्रक्चर क्या हो गया? चेंज हो गया. स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से ये सबस्ट्रेट यहाँ अटैच नहीं हो सकता और फिर वो उस एंजाइम को एक्टिविटी जीरो कर. सो इनहिबिटर एक्टिविटी को स्टॉप कर देगा और एक्टिवेटर एंजाइम्स की एक्टिविटी को और ज्यादा एक्टिवेट कर. So this is all about that. Other